Hello dear children, welcome once again to my channel Computer Science with Meena Dogra. In this video, I'm going to cover up the same sample paper that I covered up for class 11th Computer Science, and this time it's part 2, which is going to cover the case study based questions that have been introduced in computer science paper from this year. And case study based questions will come in section 2 of part A. They will carry 8 marks. You will be given 2 case studies, children, and each case study will be followed by 5 questions or 5 subparts. You have to attempt 4 subparts from the given 5 subparts for each case study based questions. They will be question number 22 and 23. Question number 1 to 21 we already covered in. We have already covered in part 1. I would request each one of you to watch part 1 before watching this part 2. Fine. And 2 case studies that I have taken for the explanation in this sample paper. They are based on the chapters Society, Law and Ethics and Computational Thinking and Programming Part 1, that is Python. So without wasting much time, let us proceed with the केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन. दे आर वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड बहुत ध्यान से अगर आप देखो तो कुछ भी नहीं होगा इनमें. आपने पढ़ा हुआ है, बहुत आराम से 4 क्या आप पांचों के पांचों पार्ट्स भी अटेम्प्ट कर पाओगे. Fine. So section 2 part A says both case study based questions are compulsory. Attempt any 4 subparts from each question. Each question will carry 1 mark. तो 5 में से 4, 5 में से 4, that is 4 plus 4, total 8 क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करोगे और ये आपको 8 मार्क्स दिलाएंगे. सो क्वेश्चन नंबर 22 पर चढ़ते हैं, जो सोसाइटी, लॉ एंड एथिक्स से है. एंड इट रीड्स, राहुल हैज टू कंप्लीट एन असाइनमेंट ऑन साइबर स्पेस एंड एसोसिएटेड सिक्योरिटी थ्रेट्स. He needs your help to identify the terms for the following statements or situations. Fine. So Rahul is working on cyberspace and cyber threats टॉपिक. उसको एक असाइनमेंट सॉल्व करना है. वो आपसे कहता है कि कोई सिचुएशन गिवन है या जो स्टेटमेंट्स गिवन है उसके असाइनमेंट में आप उसको हेल्प कीजिए कि वो उसको सॉल्व कर पाए. So let us proceed with the first thing that we have to do for Rahul, and that is malware disguised in what appears to be a legitimate software. There are 3 malwares in your course: virus, worms and Trojan horses. So Trojan horses का आंसर है, because Trojan horse एक ऐसा malicious सॉफ्टवेयर है जो इनिशियली आपको हार्मलेस लगता है, बट इट ट्रैप्स यू नो इनटू इंस्टॉलिंग इट और डाउनलोडिंग इट, एंड वंस इट इज देयर ऑन योर सिस्टम इट स्टार्ट्स शोइंग इट्स ट्रू कलर्स. सो डिस्गाइज मतलब वो भेष बदल के आएगा, वो लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर के तरह से आपको लगेगा, उसकी डिस्गाइज में आएगा, लेकिन वो एक लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर ना होकर एक मेलवेयर है. तो इसका आंसर क्या है? ट्रोजन हॉर्स, which is a malware that initially appears to be a harmless or legitimate software. Fine. B part कहता है situations that prevent the legitimate users from accessing or using resources and information. See, I am using my email account. I have a valid email account. I know my password. What happens one fine day someone gains access to my password and changes it in an unauthorized manner. I am not aware of it. When I sit to log in, मैं अपने अकाउंट में लॉग इन करती हूँ और पासवर्ड डालती हूँ, I get a message that this password is incorrect. Now this is what I am being denied service. I am being denied access to my email account despite of being a legitimate user of my email account, because somebody has maliciously or gained access in an unauthorized manner and changed my password. So this is a DOS attack. शॉर्ट में से DOS कहते हैं. और denial of service attack, in which a legitimate user is denied service which he or she is entitled to use. So ये एक आपका हो गया. तो सी पार्ट कहता है an attempt to acquire sensitive information such as usernames, passwords, credit card details by masquerading as a trustworthy entity in an electronic communication. ठीक है, आप ट्रस्टवर्दी एंटिटी की तरह लगोगे और उस ट्रस्टवर्दी एंटिटी बनकर आप एक ऑनलाइन कम्युनिकेशन में सेंसिटिव इंफॉर्मेशन सच एज यूजर नेम, पासवर्ड या क्रेडिट कार्ड डिटेल्स किसी भी पर्सन के, किसी भी इनोसेंट पर्सन के आप एक्वायर कर लेते हो. उस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं? फिशिंग अटैक. जैसे ईमेल फिशिंग हो गया है ना. आपने क्या किया,
एक सेंसिटिव आपने एक ईमेल भेजा जो वैलिड लगेगा और उसमें यूज़र से कहा जाएगा कि आप अपनी आईडी पासवर्ड या अपने क्रेडिट कार्ड डिटेल्स को प्रोवाइड कीजिए। यूज़र उसे एक वैलिड ईमेल समझकर सारी डिटेल्स आपको ईमेल कर देगा और वो एक फिशिंग अटैक का विक्टिम बन गया। ठीक है, सो ये फिशिंग अटैक्स भी एक साइबर थ्रेट हैं जो हम अलर्ट होकर अवॉइड कर सकते हैं। दैट इफ वी आर गेटिंग एन ईमेल फ्रॉम एन अननोन सोर्स or till we are not absolutely confirmed about the validity of the email sender, we should never share our personal details or credit card details, or we should never transfer any money in an electronic communication to through any such this thing method until unless we're absolutely sure about the identity of the person who is demanding it from us. Fine, so this is a phishing attack. Second, D part says Mohit is the owner of a website that shares music files without permission from recording labels, and Mohit is involved in illegal downloading. ठीक है ना, पायरेसी है, illegal downloads हैं when you are not आप illegally movies download करते हो, games download करते हो, music files download करते हो। सो कॉपीराइटेड मटेरियल को इलीगल वे में डाउनलोड करना बिना परमिशन लिए ओनर की, तो दैट एंड फिर उसको आगे उसको मॉनेटरी गेन्स के लिए यूज करना, so that is what is being depicted in this question. So Mohit is involved in illegal downloading, which is again a cyber crime. Then it says use of internet or other electronic means to harass an individual, a group of individuals or an organization, and the very obvious answer is cyber stalking. So cyber stalking का जो victim होगा वो harass किया जाएगा, इंडिविजुअल हो सकता है, वो कोई ग्रुप हो सकता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, जिसको आप इंटरनेट या किसी इलेक्ट्रॉनिक मीन्स को यूज़ करके आप किसी भी इंडिविजुअल को हैरेस कर रहे हो, तो वो सिचुएशन क्या कहलाती है? साइबर स्टॉकिंग। फाइन, सो ये हमारी पहली केस स्टडी कवर हुई। इसमें 5 पार्ट्स गिवन है एंड यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 4 out of these 5 sub parts. Let's proceed to the second case study, which is based on your computational thinking and programming, that is Python. And this I have taken one question like which says Amit has created a list of integers num with the following contents, that is 61892. ठीक, लिस्ट बनाइए इंटीजर्स की। नाउ ही वांट्स टू राइट पाइथन स्टेटमेंट्स टू परफॉर्म द फॉलोइंग ऑपरेशंस ऑन दिस लिस्ट। हेल्प हिम टू राइट पाइथन स्टेटमेंट्स टू परफॉर्म द ऑपरेशंस एज पर हिज रिक्वायरमेंट्स। इस लिस्ट पर उसको कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, ठीक है ना। सो दिस लिस्ट इज num इज इक्वल टू 61892। लेट मी कॉपी दिस लिस्ट। इस क्वेश्चन में मैं आपको एक टिप भी दूंगी कि अभी तो इन्होंने इसको इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स मांगे हैं, ठीक है, लेकिन आपको पता है कि हर स्टेटमेंट का लिस्ट पर इम्पैक्ट होगा, बिकॉज लिस्ट इज म्यूटेबल एंड एनी चेंज दैट इज डन टू द लिस्ट इज डन इन प्लेस इन द ओरिजिनल लिस्ट ऑब्जेक्ट। सो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपसे फाइनल लिस्ट कंटेंट मांगा जाएगा इन सारे पार्ट्स के बाद, वो लिस्ट चेंज हो चुकी होगी। एवरी पार्ट विल हैव विल गिव अ चेंज लिस्ट टू द सेकेंड पार्ट। तो आप बहुत ध्यान से इसको करना, क्योंकि इसमें फाइनल लिस्ट नहीं पूछी है, सिंपली स्टेटमेंट्स मांगे, बट हम उसका इम्पैक्ट देखेंगे इस वीडियो में। सो सेट द सेकेंड एंट्री टू 3. Second entry to 3. Now first entry is 6, which is at index 0, and second entry is 1, which is at index 1. So हमें set the second entry को change करना है. So I'll write change the value at index 1, square brackets में मैंने index दिया, and it is asking to set it to 3. So इसको 3 लिख दिया. So num1 is equal to 3. अब जरा num को देखते हैं। देखो, आप nums 1 था, list mutable है, 3 in place, 1 has been overwritten with 3. So second entry हमारी change हो गई। ये ध्यान रखिएगा आप कि every act on the list, that is editing that list, अगर आप print नहीं कर रहे तो और बात है, but if you are performing any function or any assignment statement you are giving, that is going to make a change to the list contents. So num1 3 हो चुका है। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। सेकेंड एंट्री आपको ध्यान रहेगी, सेकेंड एंट्री का मतलब num2 नहीं लिखना, num1 लिखना है, क्योंकि इंडेक्सिंग बिगिंस विद 0। फाइन, अब आता है सॉर्ट द लिस्ट इन डिसेंडिंग ऑर्डर।
ठीक है। सो सॉर्ट द लिस्ट इन डिसेंडिंग ऑर्डर, इसके लिए हमने ये स्टेटमेंट लिखा है दैट सपोज आप लिखते हो ये आपकी लिस्ट है इस समय, ठीक, आपने लिखा नम डॉट सॉर्ट और फिर इसके लिए आपको लिखना पड़ेगा रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू, क्योंकि डिफॉल्ट वैल्यू रिवर्स की फॉल्स होती है, दैट मीन्स लिस्ट असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट होती है। बट क्योंकि आपको लिस्ट को डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है, सो आपने लिस्ट का बिल्ट इन फंक्शन दैट इज सॉर्ट यूज किया है, और सॉर्ट को आपने अगर कोई आर्ग्यूमेंट नहीं दिया होता तो असेंडिंग ऑर्डर सॉर्टिंग होती है, क्योंकि रिवर्स पैरामीटर की वैल्यू फॉल्स होती है, ठीक है ना। लेकिन क्योंकि आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है, सो यू रिटन रिवर्स इज इक्वल टू 2 एंड सी व्हेन यू प्रिंट दिस नम, ठीक है ना, इन प्लेस सॉर्ट हो गई है लिस्ट, इट वाज 63892, नाउ यू कैन सी ऑल द लिस्ट एलिमेंट्स हैव बीन अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। सो डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए आपको रिवर्स लिखना पड़ेगा इज इक्वल टू ट्रू। रिमूव द फर्स्ट एंट्री फ्रॉम द लिस्ट, रिमूव द फर्स्ट एंट्री फ्रॉम द लिस्ट। सो लिस्ट का एक मेथड होता है, मैं आपको बता दूं, num डॉट पॉप, ठीक है ना। तो फर्स्ट एंट्री मांगी है, ठीक है। सो कहीं आप देखते हो कि बाई वैल्यू भी डिलीशन होता है, आपसे कहा होता है कि रिमूव 9 फ्रॉम द लिस्ट, तो आप रिमूव मेथड से भी रिमूव कर सकते थे। रिमूव मेथड लिस्ट का होता है जो ब्रैकेट में वैल्यू लेता है, और पॉप मेथड जो लिस्ट का होता है वो ब्रैकेट में इंडेक्स लेता है, मतलब आर्गुमेंट इंडेक्स लेता है। तो खाली पॉप लिखने पर आपकी हमेशा लिस्ट से लास्ट एलिमेंट डिलीट होता है। इफ आई राइट लाइक दिस, आई गेट दिस, सी माय लिस्ट हैज चेंज्ड एंड इट इज नाउ पॉप विदाउट एनी आर्ग्यूमेंट्स हैज रिमूव्ड द element at the last position from the list in the list, and it has even returned that value to me, which is coming out to be 2. Now if I'll print num, see it is the value 2 is gone from it. Let me append it back to the list and write append 2 and now print num. It's original now with the original contents. So मुझे क्या करना है, रिमूव करना है फर्स्ट एंट्री को। फर्स्ट एंट्री को रिमूव करने के लिए आई कैन राइट num डॉट पॉप एंड फर्स्ट एंट्री का इंडेक्स होता है 0, ठीक है। सो व्हेन आई राइट दिस, तो देखो आपको 9 रिटर्न किया, इसने मेरा एलिमेंट एट 0th इंडेक्स रिटर्न किया, ठीक। अब इसको करने का एक और तरीका भी हो सकता था कि आप यहाँ लिखते हैं num डॉट रिमूव 9, तो रिमूव से भी बाई वैल्यू रिमूव होता है, और पॉप में आप इंडेक्स देते हो वो बाय इंडेक्स रिमूव होता है, ठीक है। सो विच एवर वे यू फाइंड, अगर आपसे कहा जाता कि लास्ट एलिमेंट रिमूव करना है तो आप लिखते हैं num डॉट पॉप, और अगर आपसे कहा गया फर्स्ट एलिमेंट रिमूव करना है तो आपने लिखा num डॉट पॉप 0, ठीक। और पॉप के थ्रू आप किसी भी गिवन इंडेक्स की वैल्यू को रिमूव कर सकते हो, ठीक। देन इंसर्ट 11 एट इंडेक्स 3, insert 11 at index 3. So let me first num dot insert, इंडेक्स कौन सा है 3 और उस पर आपको देना है 11, ठीक। इंसर्ट द वैल्यू एट इंडेक्स 3। अब आप देखो जो हमारी करंट लिस्ट थी पॉप 0 होने के बाद वो थी 8632, ठीक, क्योंकि 9 पॉप हो चुका था। अब 8632 में अगर मैं यहाँ लिखूं, सपोज मैंने यहाँ लिखा num is equal to 8632, तो इंडेक्स 1 क्या है 8, इंडेक्स 0 इज एट इंडेक्स 0 पर 8 है, 1 पर 6 है, 2 पर 3 है और इंडेक्स 3 पर 2 है। अब इस इंडेक्स 3 पर आपको क्या इंसर्ट करना है 11, तो ये स्टेटमेंट आपने यहाँ दिया है, इंसर्ट कीजिए थर्ड इंडेक्स पर 11, और अब जब आप नम प्रिंट करोगे तो सी ये 11 जो है वो 2 शिफ्ट हो गया, 2 अब आपका 5th एलिमेंट बन गया और वो इंडेक्स 4 पर है और इंडेक्स 3 पर आपका 11 इंसर्ट हो गया। तो ध्यान क्या रखना है, इंसर्ट टेक्स 2 पैरामीटर्स, पहला पैरामीटर हमेशा इंडेक्स होता है और सेकंड पैरामीटर आपका वैल्यू होती है। दिस वैल्यू विल बी इंसर्टेड एट दिस इंडेक्स एंड the rest of the elements will get shifted. So last part is create a second list called num underscore copy, which is a copy of the list num, ठीक। अब होता क्या है कि जैसे आपका ये num है, ठीक है ना, अगर आपने एक और लिस्ट बनाई num underscore 1, ठीक, और उसको num असाइन कर दिया, तो अब क्या होगा, आपका जो num है और num 1 है, num underscore 1 है बेटा, वो कॉपीज नहीं बनी, वो सेम आईडी पर एक
मतलब नम वन जिस आईडी को जिस लिस्ट को पॉइंट करी थी अब उसको एक और लिस्ट भी पॉइंट कर रही है एंड दैट इज नम अंडरस्कोर वन, यानी सेम रेफरेंस लोकेशन पर दो लिस्ट हैं। आप देख रहे हो इन दोनों की आईडी सेम है। तो अगर आप नम में चेंजेस करते हो, सपोज आपने लिखा नम डॉट अपेंड 10, ठीक, तो जब आप नम को प्रिंट कराओगे तो 10 उसमें एडेड मिलेगा और नम 1 को भी प्रिंट कराओगे तो उसमें भी सेम कंटेंट्स ही आएंगे, बिकॉज बोथ दीज लिस्ट जब आपने इक्वल टू से दिया नम को असाइन किया नम अंडरस्कोर 1 में, सो व्हाट हैपेंड, नम लिस्ट का रेफरेंस नम 1 में कॉपी हो गया और ये दोनों ही लिस्ट जो हैं सेम लिस्ट को पॉइंट कर रही हैं एंड वट एवर चेंजेस यू विल मेक टू नम 1 यू आर एक्चुअली मेकिंग टू नम एंड वट एवर चेंजेस यू आर मेकिंग टू नम यू आर एक्चुअली मेकिंग टू नम अंडरस्कोर 1 बिकॉज देयर आर एलियास नेम्स ऑफ ईच अदर। दोनों सेम लिस्ट को पॉइंट कर रहे हैं और दोनों के ही थ्रू सेम लिस्ट एक्सेस हो रही है, तो लिस्ट की हमेशा एक ही कॉपी दिखेगी। क्वेश्चन कहता है लिस्ट नम अंडरस्कोर कॉपी नाम से एक लिस्ट बनाइए जो आपको जिसमें रेफरेंस असाइन नहीं करना, ठीक है, आपको उसमें क्या करना है कि क्वेश्चन पढ़ो पहले। नम अंडरस्कोर कॉपी विल बी अ कॉपी ऑफ द लिस्ट नम, ठीक है। सो आपने लिखा नम अंडरस्कोर कॉपी, अब आपने इसको नम नहीं लिखा, यहाँ पर खाली नम लिखोगे तो फिर से एक रेफरेंस बन जाएगा नम का नम अंडरस्कोर कॉपी में। लिस्ट का एक मेथड होता है इनबिल्ट मेथड दैट इज कॉपी, आप देख रहे हो यहाँ 3rd नंबर पर है, इसको कॉल करो। अब क्या होगा, जब आपने नम लिस्ट को कॉपी मेथड कॉल किया और कॉपी मेथड ने क्या किया, नम अंडरस्कोर कॉपी में एक अलग लोकेशन पर लिस्ट बनाई, तो नम की आईडी चेक करो क्या है ये रही, और अगर आप नम अंडरस्कोर कॉपी की आईडी चेक करोगे वो एक डिफरेंट लोकेशन पर क्रिएट हुआ है। So what is going to happen? Suppose now let's see what num contains at present. If you write num dot append 11, fine, and you print num is changing, fine. But when you write num underscore copy, it is unchanged. Why? Because they are at different IDs. So num underscore copy is a copy of list num and it is not an alias of list num. जो इक्वल टू से हो रहा था वो एलियासेस क्रिएट हो रहे थे, सेम लोकेशन के सेम लिस्ट के दो रेफरेंस बन रहे थे, बट कॉपी मेथड जब आपने यूज किया तो नम अंडरस्कोर कॉपी की कॉपी क्रिएट हुई नम लिस्ट की कॉपी क्रिएट हुई नम अंडरस्कोर कॉपी में और ये दोनों कॉपीज अलग लोकेशंस पर हैं। सो दैट इज व्हाई एनी चेंजेस यू विल मेक टू आइदर ऑफ दीज कॉपीज विल बी नॉट रिफ्लेक्टेड इन will not be reflected in each in these lists and they will be the changes will be restricted to the list that you are changing, ठीक है। सो ये आपका एक अच्छा पार्ट था इस क्वेश्चन का कि आपने कॉपी कैसे क्रिएट करनी है। अगर आपको कॉपी नहीं क्रिएट करनी, रेफरेंस क्रिएट करना होता तो आप लिखते हैं नम अंडरस्कोर कॉपी इज इक्वल टू नम, और अगर आपको कॉपी बनानी है तो आप लिस्ट मेथड कॉपी यूज करोगे और वो कॉपी रिटर्न करके एक नई लिस्ट बना देगा, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट द पार्ट 2 वीडियो इन विच वी डिस्कस दीज केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस ऑफ 8 मार्क्स। इस क्वेश्चन में भी आपने देखा कि 5 पार्ट्स पूछे गए, आपको कोई 4 अटेम्प्ट करने थे एंड दिस इज सो स्कोरिंग। अगर अब आप फाइनल लिस्ट देखोगे तो वो सारे कंटेंट्स के अपडेटेड वर्जन के अकॉर्डिंग होगी, ठीक है। सो आई होप आपको ये समझ में आया हो क्वेश्चन नंबर 22 एंड 23 के स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस। इसके साथ हम इस वीडियो में अपना पार्ट ए कंप्लीट कर रहे हैं। प्लीज वॉच बोथ द पार्ट्स and get back to me with your valuable feedback, and I'll eagerly wait for your feedback, children. I'll get back with the part B solution very soon. So till we meet again, happy learning. God bless you.